Welcome. In the last video, we have covered the journey to the Indian Constitution. In that, we have covered the legislative acts that were passed in British India, and now the turn come to the Constituent Assembly of India. So, let's continue this journey to the Indian Constitution with Constituent Assembly of India. Let's outline this. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी. इसकी जो मुख्य बातें हैं, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड इन जुलाई 1946. इसके बाद टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, 4 चीफ कमिश्नर के एरियाज़ के एंड 93 रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन स्टेट्स के. इलेक्शंस वर मेड फॉर 296 आउट ऑफ 389 मेंबर्स which were voted by assemblies of provinces. Congress won 208 while Muslim League won 73 and 15 others. इसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 9th of December 1946 in New Delhi Council Chamber Library. Oldest member Dr. Sachidanand Sinha made temporary head of Constituent Assembly. Muslim League boycotted and demanded a separate Constituent Assembly for Pakistan. Representative of Hyderabad didn't attend this Constituent Assembly meeting. Provinces and Indian states got representation in proportion to their population. For 10 lakh population, one representation was given. Representation of provinces mainly by 3 communities: Muslims, Sikhs and General. 296 representatives of British provinces divided on communal basis. 213 General and 79 Muslims and 4 Sikhs. 33 scheduled tribe members were in Constituent Assembly and 15 women members were present. And इनके नाम थे अम्मू स्वामीनाथन, एनी मेस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित. सो ये थी 15 फीमेल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट थी. देन 11th December 1946, Dr. Rajendra Prasad elected as President of Constituent Assembly. Proceedings of Constituent Assembly started with target proposal announced by Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946. After target proposal, Constituent Assembly appointed many committees for making of Constitution. जो मेन कमिटीज़ थी वो थी संचालन समिति, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति, जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, जिसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, जिसे हेड कर रहे थे भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति, जिसे हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसे हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति, जिसे हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद. वहीं पर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां बनाई गई थीं. पहली मौलिक अधिकार समिति, जिसे हेड कर रहे थे जेवी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति, जिसे हेड कर रहे थे एचसी मुखर्जी. टू डिस्कस on draft on constitution made by B.N. Rao on 29th of August 1947, Constituent Assembly created a committee for drafting headed by B.R. Ambedkar and 6 other members, जिसमें थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, D.P. खेतान. After the scheme of 3rd June 1947, country was divided. So now total members of Constituent Assembly comes to 324, in which 235 for provinces and 89 for Indian states. After division of country, reorganization of Constituent Assembly done on 31st of December 1947 with 299 members, out of which 229 from provinces and 70 were from Indian states. After discussion on draft of constitution, drafting committee presented its report to Constituent Assembly on 21st February 1948. First hearing of draft on constitution was conducted from 4th to 9th of November 1948. इसके बाद सेकंड हियरिंग ड्राफ्ट को सुनने के लिए की गई थी 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक. इसके बाद थर्ड हियरिंग भी रखी गई थी ड्राफ्ट पर डिस्कशन के लिए, जो कि 14th से 26 नवंबर 1949 तक चली. 3 हियरिंग्स के बाद फाइनली जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पर वो पास हुआ. फाइनली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ 284 मेंबर्स. टोटल टाइम इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months and 18 days. टोटल 114 डेज डिस्कशन चला ड्राफ्ट्स पर. अप्रॉक्स जो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की पूरी प्रक्रिया में वो था लगभग 63,96,729 रुपये उस समय.
On 26th of November 1949, Constituent Assembly passed Constitution with 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Total 15 articles adopted and applied on 26th of November 1949, जो थे Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 336, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393. एंड बाकी के जितने आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू किए गए 26 ऑफ जनवरी 1950 को. लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 24th जनवरी 1950 एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद selected first president of India. Constituent Assembly continue to work as interim parliament till formation of new parliament after first general elections of 1951-1952. जो इंटरम गवर्नमेंट भारत के लिए बनाई गई थी, जो कि बेस्ड थी ऑन कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स पर, उसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल से जुड़े मामलों को देख रहे थे. वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग को देख रहे थे. बल्लेव सिंह रक्षा मंत्रालय देख रहे थे. जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग देख रहे थे. सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग देख रहे थे. सी एच भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग देख रहे थे. राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग देख रहे थे. आसफ अली रेलवे मंत्रालय देख रहे थे. जगजीवन राम श्रम मंत्रालय देख रहे थे. मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां जो कि वित्त मंत्रालय देख रहे थे. आई चुंदरीगर जो कि वाणिज्य विभाग देख रहे थे. अब्दुल रब नश्तर जो कि संचार विभाग देख रहे थे. जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि विभाग को देख रहे थे. गजानतर अली खां जो स्वास्थ्य विभाग को देख रहे थे. इसके बाद 1951 और 52 में हमारे देश के पहले स्वतंत्र चुनाव होते हैं और उसके बाद हमारी एक स्वतंत्र भारत की सरकार बनकर आती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के विभाग को देख रहे थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले के विभाग को देख रहे थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग को देख रहे थे. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग को देख रहे थे. डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग को देख रहे थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विभाग को देख रहे थे. जगजीवन राम श्रम मंत्रालय को देख रहे थे. सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देख रहे थे. राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय देख रही थी. सी एच भाभा वाणिज्य विभाग देख रहे थे. रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग देख रहे थे. आर के षणमुगम शेट्टी वित्त विभाग देख रहे थे. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग देख रहे थे. वी एन गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय देख रहे थे. इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मेन काम किया वो था सर्टिफाई किया भारत का पार्टिसिपेशन कॉमनवेल्थ नेशंस में, यानी कि वो सभी नेशन जो किसी ज़माने में यूके यानी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, उनको आज़ादी के बाद एक ग्रुप बनाया गया कॉमनवेल्थ नेशंस का, उसमें उन सभी देशों को रखा गया. तो इसमें भारत का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. इसके बाद 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. नेशनल एंथम भारत की अडॉप्ट की गई 24 जनवरी 1950 को. वहीं पर हमारा नेशनल सॉन्ग 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया. So, in this video, we have discussed important works that were performed by Constituent Assembly of India, how it was made, how was the representation of members in it, and we have outlined Constituent Assembly of India. So, in this series, we will continue to discuss about the journey to the Indian Constitution. So, stay tuned and till the next video, keep practicing and God bless.